Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are diving into the very first chapter of class 11 psychology, that is, what is psychology? If you are curious about the human mind behaviors or you want to become a psychologist someday, this chapter is your launchpad. So let's get started. First things first, what exactly is psychology? The word psychology comes from the Greek word psyche, which means soul, and logos, which means study. So earlier it was called the study of soul, but now psychology is defined as the scientific study of mental processes, experiences, and behavior in different contexts. Imagine you are playing a game. Your thoughts during the game are mental processes. The excitement you feel is an experience, and your actions in the game are your behavior. So we can say that psychology is the science that studies mental processes, experiences, and behavior in different contexts using biological and social science methods. Okay. So here we can say that now comes psychology as a discipline. So defined by what it studies and how it studies. Psychologists aim to be objective and systematic. Indian and Western traditions both value self-reflection and conscious experience. So अभी हमें आगे जाने के लिए सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या कौन कौन से की कॉन्सेप्ट्स हैं जो इसमें यूज़ हो रहे हैं. सबसे फर्स्ट है मेंटल प्रोसेसेस. मेंटल प्रोसेसेस internal activities like thinking, memory, attention, reasoning, ये सब आता है. So we can say that mental processes are your thoughts like problem solving, remembering, and daydreaming. All the thoughts are mental processes. Then comes experience. Experience is what you feel inside, like joy, fear, sadness, है ना. So these are all comes under experiences. Then comes behavior. Behavior is what others see you do. Behavior दूसरे जो देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, like laughing, running, or answering a question. It is observable action and reaction. Okay. Then there are two types of behavior we can say. First is overt and the other one is covert. So in overt we can say some behaviors are overt, मतलब visible. ये होते हैं हमारे visible behavior जो overt behaviors हैं, और ये जो covert behaviors होते हैं ये होते हैं internal behavior, like your heart beat increasing when you are nervous, है ना, जैसे हम anxious होते हैं. So anxiousness is an covert behavior. Then comes stimulus. Stimulus is anything that causes a response. कोई भी चीज़ जिसकी वजह से एक रिस्पॉन्स आ रहा है, और रिस्पॉन्स होता है रिएक्शन टू अ स्टिमुलस. किसी भी चीज़ को देख के जो हम रिएक्शन दे रहे हैं वो है रिस्पॉन्स. देन कम्स साइकोलॉजी एज अ साइंस. Psychology is both a natural and a social science. Okay. So as a natural science, it uses tools like brain scans, है ना, जिसे हम बोलते हैं EEG, fMRI, to study biological processes, जो हमारे biological processes brain के देखते हैं. It follows hypothetico-deductive model. जो अगर natural science इसलिए है क्योंकि वो hypothetico-deductive model को यूज़ करती है, फॉलो करती है. It applies scientific methods and emphasizes objectivity. ये scientific methods को apply करती है हर जगह. ठीक है. Focuses on cause and effect relationship. Cause and effect relationship में focus करती है, और ये neuroscience से related है, biology से related है, and artificial intelligence से related है, इसलिए हम इसको natural science भी कहते हैं. Then comes psychology as a social science. It studies how our culture, society and relationship shape who we are. कैसे हमारा बिहेवियर है, कैसे एक ह्यूमन बिहेवियर शेप होता है कल्चर, सोसाइटी और रिलेशनशिप की वजह से. तो फोकसेस ऑन ह्यूमन बिहेवियर इन सोशल कल्चरल कंटेक्स्ट, कंसिडर्स पर्सनल एक्सपीरियंसेस, सोशल इन्फ्लुएंसेस, कल्चरल एनवायरनमेंट्स, एक्सप्लेन्स बिहेवियर एज इंटरेक्शंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड देयर सराउंडिंग. सोशल साइंस इसलिए क्योंकि ये हमारा बिहेवियर शेप करती है. ठीक है. सो वेदर इट्स न्यूरॉन्स फायरिंग इन योर ब्रेन और हाउ योर फ्रेंड ग्रुप इन्फ्लुएंसेस यू, साइकोलॉजिस्ट स्टडीज इट ऑल. ठीक है. देन हमारा आता है अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर. माइंड is not
नॉट इक्वल टू बिहेवियर. माइंड हैज़ नो फिजिकल लोकेशन बट रिलेज ऑन द ब्रेन. माइंड का कोई फिजिकल लोकेशन नहीं होता, वो ब्रेन के ऊपर रिले करता है. ठीक है. माइंड इज़ लिंक्ड विद कॉन्शियसनेस, मेंटल इमेजरी, फीलिंग्स एंड मोटिवेशन. माइंड जो है वो लिंक करता है, लिंक है हमारे कॉन्शियसनेस से, मेंटल इमेजरी से, फीलिंग्स से, मोटिवेशन से एंड सो ऑन. देन साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, ये जो टर्म है इसका मतलब है स्टडीज़ हाउ माइंड अफेक्ट्स बॉडीज़ इम्यून रिस्पॉन्सेस. कैसे हमारा माइंड हमारे बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्सेस को अफेक्ट करता है. ये कौन पढ़ता है, किस में पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी में. फॉर एग्जाम्पल विजुअलाइजिंग हीलिंग कैन रिड्यूस आर्टरी ब्लॉकेजेस. ठीक है. देन कम्स पॉपुलर notions versus scientific psychology. Now here's something fun. We all think we are amateur psychologists, right? Like out of sight, out of mind versus distance makes the heart grow fond. Which one is true? Both can be, but psychology goes beyond common sense. It uses experiments, observations, and research to find real answers. Okay, psychologists aren't mind readers or magicians. They are scientists who study behavior logically. ठीक है. तो इसमें यही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई कि जो साइकोलॉजिस्ट है वो कोई माइंड रीडर या मैजिशियन नहीं है, वो एक साइंटिस्ट है जो बिहेवियर को स्टडी करता है लॉजिकली. ठीक है. देन इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी. साइकोलॉजी डिडंट डेवलप ओवरनाइट. ऐसा तो है नहीं कि एक रात लगी और वो एकदम से साइकोलॉजी आ गया, नहीं. ठीक है. इट हैज़ अ कोई टाइम लाइन जिसको हम टाइम लाइन बोलते हैं. सबसे पहले आया स्ट्रक्चरलिज्म. ठीक है. जिसमें स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड. इसमें हमने किसके बारे में पढ़ा, माइंड के स्ट्रक्चर के बारे में. इंट्रोस्पेक्शन स्टार्ट हुआ. ठीक है. देन आया फंक्शनलिज्म ने फोकस किया ऑन वाई वी बिहेव द वे वी डू. हम ऐसा क्यों बिहेव करते हैं जैसे हम कर रहे हैं. ठीक है. तो फंक्शंस ऑफ बिहेवियर में इसने फोकस किया. देन गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी है. गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी द होल इज़ ग्रेटर देन द सम ऑफ पार्ट्स. तो इसमें परसेप्शन इन होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग पे फोकस किया. देन आया बिहेवियरिज्म ओनली स्टडीड ऑब्जर्वेबल बिहेवियर. सारे ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को भी उसमें स्टडी किया, जैसे हमारे ओवर बिहेवियर है, सब सिर्फ उन्हीं को स्टडी किया. देन आया साइको एनालिसिस में फ्रीवर्ड स्टडीड द अनकॉन्शियस माइंड. इसमें अनकॉन्शियस माइंड को भी स्टडी किया गया. देन कम्स ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में बिलीव्ड इन फ्री विल एंड ग्रोथ. फ्री विल और पर्सनल ग्रोथ के ऊपर स्टडी की गई. देन आया कॉग्निटिव साइकोलॉजी फोकसेस ऑन थिंकिंग, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग. ठीक है. सो ईच स्कूल गिव अ न्यू लेंस टू अंडरस्टैंड ह्यूमन. हर स्कूल ने एक नया तरीका दिया था ह्यूमन बिहेवियर को समझने का. देन डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया में कैसे डेवलप हुआ. सो इंडिया हैज़ अ रिच ट्रेडिशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग द माइंड थ्रू योगा, मेडिटेशन एंड फिलॉसफी. काफ़ी टाइप से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं माइंड. ठीक है. सो मॉडर्न साइकोलॉजी इन इंडिया बिगैन एट कैलकटा यूनिवर्सिटी इन 1915. सबसे पहले 1915 में कैलकटा यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी लैब हुई थी का स्टार्ट हुआ था. ओवर टाइम इंडियन साइकोलॉजिस्ट फोकस ऑन लोकल इशूज़. नाउ वी हैव ब्रांचेस लाइक इंडिजीनियस साइकोलॉजी रूटेड इन इंडियन कल्चर. सो बेसिकली ये जो हमारी साइकोलॉजी लैब थी कैलकाटा में, इसको इन्फ्लुएंस करने वाले कौन थे, NN सेन गुप्ता एंड जी बोस. ठीक है. और इसमें में एक ये इम्पॉर्टेंट है कि इंटरडिसिप्लिनरी एंड अप्लाइड फोकस इंडिजिनियसाइजेशन. तो बेसिकली पहले हम इसको लोकल इंडियन साइकोलॉजिस्ट थे वो लोकल इशूज़ पे फोकस करते थे, लेकिन अब हमारे पास ब्रांचेज हैं जैसे इंडिजीनियस साइकोलॉजिस्ट जो इंडियन कल्चर के रूट्स में है. देन देयर आर सम ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी. अब साइकोलॉजी में भी काफ़ी ब्रांचेज हैं. जैसे हमारा कॉग्निटिव साइकोलॉजी हो गया. कॉग्निटिव साइकोलॉजी में सब कुछ थिंकिंग, मेमोरी रिलेटेड होता है. देन हमारा हो गया बायोलॉजिकल में सारा ब्रेन बॉडी लिंक होता है. ठीक है. देन हमारा हो गया डेवलपमेंटल में हमारे सारे लाइफ स्टेजेस होते हैं कि हम बचपन से ओल्ड एज तक कैसे डेवलप हो.
देन आता है हमारा सोशल। सोशल में ग्रुप बिहेवियर, रिलेशनशिप, पीयर रिलेशनशिप, ये सब आता है। देन हमारा आता है इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल में होता है नेचर और ह्यूमन का बिहेवियर। देन हमारा आता है हेल्थ। हेल्थ इज़ ऑल रिलेटेड टू स्ट्रेस, इलनेस, कोपिंग मैकेनिज्म एंड ऑल दैट। देन हमारा आता है क्लिनिकल। क्लिनिकल इज़ ऑल अबाउट मेंटल डिसऑर्डर्स। देन हमारा आता है एजुकेशनल। एजुकेशनल इज़ लाइक स्टडिंग, लर्निंग इन स्कूल, है ना, लर्निंग इन स्कूल्स, ये सब को स्टडी करता है। देन हमारा आता है इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आता है जो हमारा बिहेवियर वर्क प्लेसेस पे होता है उसका। देन हमारा आता है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स की साइकोलॉजी, है ना, बूस्टिंग एथलीट्स परफॉर्मेंस वगैरह आती है इसमें। देन हमारे पास आती है काउंसलिंग साइकोलॉजी, जिसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली हेल्प पीपल विद एवरीडे प्रॉब्लम, उनका स्ट्रेस, रिलेशनशिप जो भी है उनको काउंसलिंग करके उनको थोड़ा सा रिलैक्स फील करवाते हैं, ठीक है। देन हमारे पास आती है कल्चरल साइकोलॉजी, जिसमें ऑल अबाउट कल्चर वगैरह होता है। फॉरेंसिक साइकोलॉजी में होता है साइकोलॉजी लीगल एंड क्रिमिनल जस्टिस सेटिंग, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट एवरी डोमेन वी हैव कवर्ड इन दिस, ओके। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी इन द अदर डिसिप्लिन। अदर डिसिप्लिन में तो साइकोलॉजी का और अदर डिसिप्लिन का क्या लिंक है, फिलॉसफी से कैसे है। फिलॉसफी में नेचर ऑफ माइंड और कॉन्शियसनेस के बारे में स्टडी किया जाता है। मेडिसिन का माइंड बॉडी हेल्थ कनेक्शन। सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में सोशल बिहेवियर एंड कल्चर। पॉलिटिकल साइंस में वोटिंग पावर, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। इकोनॉमिक्स में डिसीजन मेकिंग, कंज्यूमर बिहेवियर। लॉ में विटनेस टेस्टिमनी, क्रिमिनल बिहेवियर। मास कम्युनिकेशन में मीडिया इन्फ्लुएंस, ऑडियंस साइकोलॉजी। कंप्यूटर साइंस AI हो गया, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन हो गया। फाइन आर्ट्स एंड म्यूज़िक में इमोशंस, थेरेपी एंड परफॉर्मेंस। इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर में ह्यूमन फैक्टर। तो ये हमारा कुछ साइकोलॉजी और उनका अदर डिसिप्लिन के साथ क्या रिलेशन है वो है। देन कम साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। सो वेयर डू यू यूज साइकोलॉजी, ओके। First we can say that improving mental health and relationships, enhancing learning and memory, understanding and reducing stress, addressing social problems, poverty, terrorism, enhancing quality of life. Psychologists work in school, hospitals, industries, military, NGOs, etc. So we can say that we use psychology in handling stress, improving study habits, understanding relationships, solving conflicts, and boosting confidence. So whether you are a student, athlete, artist, or entrepreneur, psychology helps you understand yourself and others better. So, let's recap. Psychology is a study of mind, behavior, and experience. It's a science and social science. It helps in real life. It connects with many fields, and it's one of the most fascinating subjects you will ever study. So found this helpful? Then give it to a thumbs up, drop your doubts in the comments, and don't forget to subscribe for more chapters explained in simple language. Until next time, keep learning, keep exploring your mind. Thank you.